Hello friends, welcome to ProTalent and I'm Nitin Parmar. I welcome you all for this capsule module on very important topic on regulation and taxation of betting and gambling in India. My dear students, I'm sure you are aware that ProTalent brings such kind of module for your broader learning. Yes, so my dear students, let's start understanding about this gambling and betting, whether it is legal in India or not. Recently, a Supreme Court case came. In Supreme Court, one of the company went, you can say, and filed a petition saying that, look, we are into this online, you can say, gaming. We are not doing a lottery. And even if it is a lottery, okay, we are not falling under GST. So दोस्तों, हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया which was related to taxation on lottery and gambling, वो क्या है, उसके पीछे के प्रावधान क्या है, ठीक है, क्या मुद्दों के ऊपर उसके ऊपर टैक्सेशन किया जा सकता है, आर दे गुड्स, आर दे सर्विसेज, ठीक है, इफ दे आर नॉट गुड्स एंड सर्विसेज तो भैया उनके ऊपर जीएसटी तो नहीं लग सकता। हम बात करेंगे दोस्तों कि किस तरीके से वो गुड्स में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है, जिसमें एक महत्वपूर्ण टर्म आएगा जिसका नाम है एक्शनेबल क्लेम। So let us understand what is this actionable claim according to this GST and in general. Okay, then we will also talk about, can gambling and betting be made legal in a country called India, which is known as welfare state? Yes or no? दोस्तों, भारत में बरसों से गैम्बलिंग और बैटिंग चलता है, महाभारत के समय से। इनफैक्ट महाभारत का युद्ध, you can say, का origin is all about that, ये सट्टा, yes or no, गैम्बलिंग, जुआ खेला गया था, तभी तो इतना बड़ा you can say लड़ाई हुआ। पर दोस्तों, you can say महाभारत से लेकर अभी तक इंडिया ने बहुत बड़े बड़े बदलाव देखे। आज जिस तरीके की सिविलाइजेशन है, आज जिस तरीके की सोसाइटी है, उन सोसाइटी में हमें ये गैम्बलिंग और बैटिंग लीगल रखे या ना रखे, हम बात करेंगे। व्हाट आर द लीगल प्रोविजंस of gambling in India, in, you can say, in terms of rules, in terms of law, what are the important laws, and more importantly we will talk about online gaming industry, because recently one case which is pending in Supreme Court about this online gaming. Yes, and this will possibly give the future to something like Dream 11 or those kind of companies. Okay, let's start to talk about, you can say, this issue. Supreme Court has held that lottery, gambling and betting are taxable under GST. Oops, this is interesting. Which means if it is taxable, which means lottery, gambling and betting, are they legal? तभी तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, क्योंकि आप जीएसटी लगाओगे कोई लीगल एक्टिविटी के ऊपर, इलीगल एक्टिविटी के ऊपर तो आप लगाओगे नहीं। यस और नो? सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। सो बेसिकली सबसे पहले ये जीएसटी का मुद्दा समझ लेते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि इट इज लीगल, ओके, ठीक है, हालांकि इट इज नॉट लीगल एवरीवेयर, ठीक है, हम बात करेंगे उसके ऊपर। पर अभी के लिए आप ये मान के चलिए कि लीगल है, तभी तो जीएसटी के बारे में बात हो रही है। ओके, let's talk about this issue about taxation first. Okay, I'm sure you understand GST, which is an indirect tax, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंडिया में वन नेशन वन टैक्स के विचार के द्वारा, ठीक है, सब जगह पे हमने जीएसटी लगा दिया एंड वी एक्सपेक्ट अ गुड फ्यूचर। पॉसिबली वी आर गोइंग टू गेन लॉट ऑफ बेनिफिट, थोड़े थोड़े बेनिफिट तो हमें अभी मिलना चालू हो चुके हैं। सो देयर वाज अ petition filed in Supreme Court by Skill Lotto Solutions Private Limited, which is one of the private limited company, you can say, involved in, you can say, this kind of, you can say, online gaming. They challenged the levy of GST on lotteries. So it is a Skill Lotto Solutions, okay, they were in the business of, you can say, this online gaming and online lottery. They say you can't take GST on lottery. Okay, the challenging
they are challenging section 2 of subsection 52 of 2017 GST Act, which said that you can say levying lottery tax, ठीक है, is there. Petitioner contended that the law was violative of our fundamental rights and it is contrary to a judgment, ठीक है, and that in the Supreme Court in the Sunrise Associate versus Government of Delhi case, it held that lotteries were merely actionable claims and cannot be defined as goods under GST. दोस्तों, इंडिया में टैक्सेशन रिलेटेड बड़ी परेशानियां होती रहती है. टैक्स का कंप्लीट पावर, प्लेनरी पावर इज इन द हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट. अब पार्लियामेंट ने अगर लॉ अच्छी तरीके से नहीं बनाया, उसमें कहीं लूप होल हो गई, फॉर एग्जांपल इन दिस केस वेदर दिस लॉटरी इज कंसिडर्ड एज गुड्स और नॉट, ठीक है. अब गुड्स इन द सेंस जीएसटी के अंदर किस किस को गुड्स माना जाएगा, किस किस को सर्विस माना जाएगा, इसका कंप्लीट पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट ने लॉटरी को you can say लिस्ट में नहीं डाला, so there is a dispute. Some you can say GST officers come to the company's office and say GST दीजिए, वो बोलता है अरे सॉरी भैया हम नहीं देंगे. ओके, क्यों? क्योंकि वो गुड्स है नहीं, ठीक है. दोस्तों, ये समझना जरूरी है that we have a lot of popular gaming platforms like Dream 11, Paytm First Games. They are raising a lot of questions about whether they are proxies for online gambling. That means are they we can say games, or we can say they are online gambling because they are involving financial transactions. So whether they will be termed as games of skill or they will be termed as games of chance. Games of chance are illegal, games of skills are legal. Yes, so दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको आज हम सेशन के एंड में देखेंगे, ठीक है. हम पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज दिस एक्शनेबल क्लेम ऑल अबाउट. दोस्तों, एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल लेट अस से यू टेक अ लॉटरी, ओके, ठीक है, आपने पेमेंट किया, यू हैव अ कागज, यू वन इट, you won that particular lottery, yes or no, what will happen? You are claiming कि भाई मुझे ये पैसा दो, yes or no, that is called actionable claim, okay, which is basically a claim to any debt. Example दे रहा हूं मैं, a claim to any debt secured legally without any mortgage. So for example, you went to a kind of personal loan wali company, okay, you went to HDFC bank, you took a loan from HDFC bank which is a personal loan, you did not give any mortgage value, आपने कोई mortgage दिया नहीं, आपने सीधा उनसे लोन लिया, yes or no, ठीक है. Now that is called actionable claim, that is called actionable claim, ठीक है. दोस्तों, it includes a beneficial interest in that movable property that does not have the claimant, ठीक है. भाई उसमें किसी का बेनिफिशियरी इंटरेस्ट है कोई मूवेबल प्रॉपर्टी में, ठीक है, तो बेनिफिशियली इंटरेस्ट वुड बी टर्म्ड एज एक्शनेबल क्लेम. एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों एक्शनेबल क्लेम के. बैंक गारंटी इज एन एक्शनेबल क्लेम. बैंक गारंटी, ठीक है दोस्तों, आप बिजनेस करते हो और बैंक आपको गारंटी देती है कि चलो भैया ये रहा आपका गारंटी, ओके, सो बैंक गारंटी दिया, ठीक है, दैट्स एन एक्शनेबल क्लेम. आपके पास कागज है, आप जाओगे कि भाई ये पैसा मेरे को दो या सामने वाली पार्टी को गारंटी दे दो, दैट इज कॉल्ड बैंक गारंटी, ठीक है. रेंट एरियर्स, ठीक है, इज बेसिकली एक्शनेबल क्लेम. लॉटरी is an actionable claim. I hope you are able to understand this. So, what are the statutory provisions in our law about goods and actionable claim? ध्यान रखना दोस्तों, ये लॉ बनाने का अधिकार किसके पास है? पार्लियामेंट. पार्लियामेंट ने अपने लॉ में जो लिख दिया है वही कोर्ट इंटरप्रेट करेगी, ठीक है दोस्तों. जीएसटी के मुताबिक, ठीक है, लॉटरी इज कंसिडर्ड एज गुड्स. Lottery is considered as goods under CGST. Okay, ठीक है. While goods also include actionable goods. It also includes actionable goods. Okay, actionable goods are like actionable claim. अभी हमने देखा. Okay, so that means you can see if you go
by GST Act 2017. It clearly states that all actionable claims, ठीक है, except lottery, betting and gambling have been exempted from GST, which means lottery, betting and gambling will come under GST while actionable claims are not coming under GST. They are not coming under GST. For example, let's say you purchase medical insurance. आपने क्लेम किया मेडिकल क्लेम, आपका कुछ खर्चा हो गया था एंड यू क्लेम्ड इट, दैट इज नोन एज एक्शनेबल क्लेम. Okay, medical insurance claim is actionable claim. No GST applicable on it. Okay, vehicle. Okay, vehicle का इंश्योरेंस, ठीक है, आपकी गाड़ी ठुक गई, आपने इंश्योरेंस करवाया तो आपको इंश्योरेंस का पैसा मिला, यू आर क्लेमिंग दैट इज कॉल्ड एक्शनेबल क्लेम. नो जीएसटी. हालांकि लॉटरी विच इज एक्शनेबल क्लेम but it will come under GST. ठीक है. Article number 366 of the Constitution says that goods are materials or commodities or articles. ठीक है. It does not include actionable claims or actionable goods under the definition of good. So as per Constitution, it is not. But if you look at Sale of Goods Act 1930, ठीक है, वो goods को define करता है. So उन्होंने actionable claims को गुड्स के डेफिनेशन में दिया नहीं. सो बेसिकली इन जनरल एक्शनेबल क्लेम इज नॉट गुड्स, बट इन जीएसटी दे हैव क्लियरली मेंशन दैट लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, ठीक है, लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग आर एक्शनेबल क्लेम्स बट दे कम अंडर जीएसटी. ओके, सो दैट मीन्स उसको तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट हुआ वो बिल्कुल सही हुआ. यस और नो? ग्रेट. अब जो जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक के जो ऑब्जर्वेशन थे उसको एक बार समझ लेते हैं. देयर वाज अ वेरी फेमस केस कॉल्ड सनराइज वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली. द एपेक्स कोर्ट इन दिस जजमेंट हैज हेल्ड दैट लॉटरी is an actionable claim. Very important. I'm sure you understand the word called actionable claim. Yes? ठीक है दोस्तों, एग्जाम में गलती से आपको एक्शनेबल क्लेम के बारे में कुछ पूछा जाए, नाउ यू मस्ट बी नोइंग इट. ग्रेट. ठीक है, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस, ठीक है, आरएमडी चमार बगुवाला, ठीक है, केस में उन्होंने बोला दैट इन दिस जजमेंट सुप्रीम कोर्ट has justified the regulation of betting and gambling. They said betting and gambling must be regulated because at the end of the day India is a welfare state. इंडिया वेलफेयर स्टेट है, ठीक है, इसीलिए इस पर्टिकुलर बैटिंग और गैम्बलिंग को रेगुलेट कर सकता है, उसको बैन भी कर सकता है. ठीक है. सिमिलरली सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में उन्होंने बोला था दैट इट डज नॉट गिव एनी रिस्ट्रिक्टिव मीनिंग टू द डेफिनेशंस ऑफ गुड्स. ठीक है. सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्टिव मीनिंग इन द गुड्स. So it is, you can say parliament has a power, has a plenary power to decide what is a good and what is not. So here if they would like to put this as a goods, they can. Okay दोस्तों, taxation on goods, ठीक है, is not a discrimination. So अगर मानो ये सब एक्चुअली डेफिनेशन के मुताबिक गुड्स है और हम इसको बोलेंगे ये गुड्स नहीं है बाय डेफिनेशन, बट पार्लियामेंट covers it as a part of, you can say, taxation, then nobody can come to the court and say हमारे फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे. क्यों भैया? बिकॉज दिस इज नॉट गुड्स. स्टिल आपने उसको गुड्स टैक्स में डाल दिया. दिस इज डिस्क्रिमिनेटरी. ओके, यू अंडरस्टैंड दिस? वेरी गुड दोस्तों. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला गलत बात है भैया, टैक्सेशन कभी भी डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है. ठीक है, क्योंकि इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट और इसकी वजह से हम ऐसी चीजों के ऊपर टैक्सेशन लगा सकते हैं दैट लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग वर टैक्स्ड इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया एंड इवन इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया. सो देयर इज अ वेरी बिग सिग्निफिकेंस ऑफ दिस जजमेंट. इट सेज इंडिया is a socially welfare state and thereby the lottery, betting and gambling, they are not consistent with the norms and the ethics of our civil society. They are not as per the norms and the ethics of our civil society, and thereby the state, which is a welfare state, is duty bound to put
more taxation on it. This is really acceptable. It ensures accountability. Thereby, there will be some regulations and taxation. They will restrict a lot of wrongdoing. Yes or no? And taxation reduces such activities because these are termed as sin. इसको पाप बोलते हैं. तो पाप है ना, वैसे दारू पीना भी पाप है, सिगरेट पीना भी पाप है. क्या बोल रहे हो सर, ऐसा हम तो करते. अरे मत करो भाई, पढ़ाई पे ध्यान दो. ठीक है. एनीवे, कमिंग टू दिस, इट इज sin. वो बिल्कुल उसके ऊपर हैवी टैक्स लगा दो ताकि लोग उसको ले नहीं. दैट इज हाउ द आइडिया इज. वो महंगा हो जाए. यस और नो? सो आइडिया ऑफ सच काइंड ऑफ टैक्सेशन, द आइडिया ऑफ सच काइंड ऑफ टैक्सेशन इज inconsistent with welfare, which is consistent with the welfare state, and running these businesses without regulation are not consistent with the welfare state. ठीक है. And obviously it gives lot of money to government. ठीक है. Revenue increases with this betting and gambling being taxed, which means all these companies, ठीक है, which are doing this rummycircle.com or let's say this lotto, you can say game, सबके ऊपर टैक्स लगेगा भैया, जीएसटी लगेगा. सरकार के पास बड़ा फायदा होगा. ठीक है. एंड the verdict says that there is no ban on betting and gambling. yes or no? दोस्तों, बैन तो है नहीं, पर गवर्नमेंट को उसके ऊपर लॉ बनाने पड़ेंगे. अगर लॉ नहीं बनाए और आपने बैटिंग और गैम्बलिंग में काम करना चालू किया, आप जेल में जा सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट हैज क्लियरली स्टेटेड that these activities are not in good faith for ideal welfare state, but it has never stepped forward to ban this illegitimacy. Yes or no? They have not said it is illegitimate. And as we talked about taxation versus social welfare, Supreme Court has termed the act of taxation as an act of social welfare. The real motive of legitimizing them is to garner taxes rather than limiting their periphery. ये बात के साथ मैं सहमत हूं कि चीजों को बैन नहीं करना चाहिए, उसका टैक्सेशन बढ़ा देना चाहिए. ठीक है. आपकी मर्जी, आपको पाप करना है, पाप करिए, पैसा ज्यादा देके जाइए. यस और नो? ठीक है. इन अ फ्री सोसाइटी दिस आइडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो दोस्तों, ये जो वर्डिक्ट है, ठीक है, इट इज राइट स्टेप टुवर्ड्स रेगुलेटिंग दिस बेटिंग एंड गैम्बलिंग. ओके. जो रामायण महाभारत के समय से चली आ रही परंपरा है. अच्छा, परंपरा ना भैया, प्रथा है, ये बोल सकते हैं, लोग करते हैं. इट इज अ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज. फेस्टिवल में होना भाई, जन्माष्टमी के समय पे है ना, ताश खेली जाती है, गैम्बलिंग होती है. ठीक है. बैनिंग दिस एक्टिविटीज विल नॉट एंड them completely. For example, banning liquor in Gujarat, in Bihar, ठीक है, in Kerala, they are not helping. All the more, those huge tragedies are creating all the more trouble. Yes or no? ठीक है. लोग अपने घरों में, है ना, लोग अपने घरों में एक ऐसे देसी दारू बनाते हैं और उसके द्वारा, है ना, वो मिथाइल अल्कोहल बनाकर लोगों को मार देते हैं. सो दिस इज रियली नॉट ओके. सो दोस्तों, अब हम बात करते हैं what are the legal provisions of this gambling in India and what is the overview of this entire online gaming industry. समझते दोस्तों. दोस्तों, gaming industry in India is in dichotomy right now. Some activities are legal, some activities are illegal. So there are no much clarity about it. Okay. So दोस्तों, you can say बहुत बार you can say there are free gaming, there are casual gaming, there are gaming for just entertainment. ठीक है. उसका क्या करेंगे? आपने देखा होगा, बच्चों के लिए गेमिंग पार्लर होते हैं. ठीक है. बच्चे जिद करते हैं कि हम वहां पे जाएंगे और गेम खेलेंगे. यस और नो? तो भैया, उसको हम क्या बोलेंगे? लीगल बोलेंगे कि एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बोलेंगे या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करेंगे? दोस्तों, गेमिंग इज, यू कैन से, कुछ पार्ट में रेगुलेटेड है, कुछ पार्ट में रेगुलेटेड है नहीं. देयर इज अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन known as Public Gaming Act 1867 which governs gambling in India. दोस्तों, बेटिंग अगर हम करें हॉर्स रेसिंग में, बॉम्बे में, पुणे में, ठीक है, बिल्कुल वो रेगुलेटेड है और वो लीगल है.
casinos are legal in Goa and Sikkim. एक जमाने में गोवा में वो आपको समुंदर के बाहर ले जाकर गेमिंग कर मतलब ऐसा गैम्बलिंग करवाते थे, आजकल जमीन पे भी होता है, ठीक है। सर्टेन गेम्स ऑफ स्किल्स आर रेगुलेटेड इन स्टेट्स लाइक नागालैंड, ठीक है। सो दोस्तों, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर दिस? सो द रूल मेकिंग related to gambling and betting, ठीक है, that lies in the hands of state because it comes under list 2 of the 7th schedule. So different state government has a different, you can say, purposes, and thereby they have a different law. So thereby you can say it is legal and regulated in only 2 states, Goa and Sikkim. Okay, they are the only states which have allowed betting and gambling. This gambling legislations primarily refer to gaming or gambling activities that are held in physical premises. Once again, online, ठीक है, के बारे में कुछ नहीं है ये लॉ। ओके, सिक्किम और गोवा का लॉ है हमारी जमीन पे आपने कुछ किया तो भैया हम आपके ऊपर रूल लगाएंगे, ये नो, ठीक है। नाउ what are the various activities are included under this gambling activity? For example, games held in physical premises which include physical exchange of goods or money is acceptable, while online gambling games, okay, they are allowed in, you can say, few states only or only one state, okay, which is Sikkim Online Gaming Regulation Act 2008. In all the other states, online gambling is still illegal, बिल्कुल इलीगल है दोस्तों, ठीक है। तो भैया सर ये बताइए फिर कि ये जो मतलब ऑनलाइन गेमिंग में गैम्बलिंग है, ठीक है, उसका क्या? सो दोस्तों ध्यान रहे, अलग अलग तरीके की सिनारियोज रहती है, ठीक है। जो जो एक्टिविटीज गैम्बलिंग से एक्सक्लूडेड है, जैसे बैटिंग ऑन हॉर्स रेस, ठीक है, गेम्स ऑफ स्किल्स उस पर नहीं है, ठीक है। तो भैया आप जो ड्रीम 11 खेलते हो, ये सुनो, या पेटीएम फर्स्ट खेलते हो, तो भैया ये क्या है आपको पता होगा, गूगल ने पेटीएम फर्स्ट को, क्योंकि वो गैम्बलिंग एक्टिविटी करता था और उसकी वजह से उसको टेम्पररीली यू कैन से अपने यहाँ से अपने जो यू कैन से ऐप स्टोर है या प्ले स्टोर है वहां से उसने अप्रूवल नहीं दिया था, ये सुनो, ये दिक्कत हुई थी, आपको याद होगा, ठीक है। लॉटरीज आर अनदर एग्जांपल। सो व्हाट आर द गेम्स ऑफ स्किल्स एंड व्हाट इज दिस गेम्स ऑफ चांस? समझते हैं दोस्तों, गेम्स ऑफ स्किल्स आर डेफिनेटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम गैम्बलिंग। नहीं तो फिर ये विराट कोहली क्रिकेट खेलता है या अजिंक्य रहाणे क्रिकेट खेलता है, उसको भी आप बोल दोगे भैया ये तो गैम्बलिंग है ना, that is not a gambling because it involves skills. Okay, this game include horse racing, tier, rummy, bridge, ठीक है, basically they are legal, ठीक है। Over the time, the ATM first games and Dream 11 has survived the scrutiny of government and functioning in the public domain because they have got exemptions by various high courts stating them as a game of skill. Just imagine, इनमें से एक कंपनी इंडिया को, है ना, इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर भी करती है आईपीएल में। नाउ द मैटर इज लिस्टेड अफ्रेश इन सुप्रीम कोर्ट whether these are termed as, you can say, game of skills or not. If Supreme Court approve, this whole industry survives, नहीं तो खत्म। मेरा मानना है कि भैया ये एक बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है। हालांकि ये ट्रैप तो करते हैं बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे इसमें फंस जाते हैं, ठीक है, आप भी फंसे होंगे, ये नो। सो दोस्तों ये ध्यान रहे कि ये बड़े बच्चों की गेम, आपको घुसना नहीं चाहिए। नागालैंड, again say for instance, has a separate legislation which details what are the games of skills, ठीक है। but दोस्तों the most important part is most states do not have such kind of clarity, कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, हवा में बातें हैं, ठीक है। तो भैया सब लोग इसका फायदा उठा रहे हैं अभी तो, और ये फायदे में नुकसान किसका होता है? लोगों को लूटा जा रहा है यहाँ से। एंड व्हाट इज दिस गेम्स ऑफ चांस? अ गेम ऑफ चांस इज अ गेम whose outcome is very random, like roulette played in casino, ठीक है, जो रोलेट घूमता है ना वो गेम्स ऑफ चांस है, ये प्योर गेम्स ऑफ चांस है दोस्तों, ठीक है। सो आई एम श्योर यू हैव लर्नड व्हाट इज दिस ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री, व्हाट इज द लीगल प्रावधान फॉर दैट, ठीक है, बैटिंग और गैम्बलिंग के लीगल प्रावधान क्या है, और सुप्रीम कोर्ट ने
जीएसटी के नजरिए से, ठीक है, लॉटरी, गैम्बलिंग, ठीक है, और बेटिंग के ऊपर जीएसटी लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, उस सब मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्शनेबल क्लेम का आइडिया समझाया। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये मॉड्यूल कैसा लगा बताइए, ठीक है। आपको अगर ये पसंद आया, इसको लाइक करिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड सेंड this idea to large number of people to join ProTalent for getting such deeper insight towards various aspects. You can say about your current affair, about your legal reasoning, about your mathematics, about your logical, English, everything. Okay. Thank you very much for joining with ProTalent and all the best.